Hello students, my name is Aniket and today we are going to see all the trigonometric formulas. सारे के सारे trigonometric formulas कैसे लिखने हैं, कैसे उसको याद रखना है in the minimum amount of time. So let us start with the formulas of trigonometry. So as you all know, trigonometry के formulas के लिए first of all we need a right angle triangle. So here we have right angle triangle ABC. फॉर आवर डिस्कशन हम एंगल जो है ए के ऊपर कंसिडर करेंगे. वी विल कंसिडर द एंगल ए फॉर ऑल द डिस्कशन. सो कंसिडरिंग द एंगल ए, ये जो साइड बनता है, सो वी विल कॉल दिस साइड एज ऑपोजिट साइड, whereas AB, this side we will call it as adjacent side, and AC, as you all know, we'll call it the hypotenuse. Okay, so first set of formulas which we are going to see is trigonometric ratios. So as you all know, there are 6 trigonometric ratios which are sine, cosine, tangent, cotangent, secant, and the last is cosecant. Sine, cosine, tangent, cotangent, secant and cosecant. So क्या हुआ है ना, इनका नाम हमने थोड़ा सा छोटा कर दिया है. So what we are calling it is sine, cos, tan, cot, sec and cosec. Okay, sine, cos, tan, cot, sec, cosec. You have to remember this. And सिर्फ साइन और कॉस लिखने से इसका कोई भी मीनिंग नहीं बनता. देयर शुड ऑलवेज बी एन एंगल अटैच्ड टू इट. सो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए. सो इट विल बी साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए एंड कोसेक ए. विद द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देयर विल ऑलवेज बी एन एंगल एसोसिएटेड विथ इट. सो साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक एंड कोसेक ए. नाउ लेट अस सी कि ये फॉर्मूलाज अभी है क्या आगे. सो दीज आर रेशोज. तो साइन भी एक रेशो है, कॉस भी एक रेशो है, एंड दीज आर द रेशो ऑफ द साइड्स. सो इसको हम देखते हैं कि इनके फॉर्मूलाज अभी कैसे बनेंगे. सो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है हमारे पास. सो वो ट्रिक देख लेते हैं पहले क्या है, एंड देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर इन सब के रेशोज. तो ये एक नाम है सो का एंड टोआ. यू कंसिडर दिस एज माई चाइनीज फ्रेंड. सो का टोआ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है ये. सो अगर तुम भी इसको दोस्त बना लो तो ये पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तुमको भी बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे. सो ये जो नाम है सो का टोआ, इसका सिग्निफिकेंस आई टेल यू. तो जो पहला नाम है सो इज नथिंग बट साइन. O is the opposite side and H is the hypotenuse. So sin का रेशो जो होगा, the ratio of sin will be O by H, that is opposite side by hypotenuse. Then का, CAH का, तो का is nothing but cos and cos का ratio will be adjacent by hypotenuse. Then T, टोआ, T is for tan. So OA मतलब क्या हो जाएगा, opposite by adjacent. नाउ अभी सवाल आता है कि cot, sec और cosec. How to find out the formulas for cot, sec and cosec? Very simple. It is to find out. See, tan is O by A. So for cot you will write its reciprocal. So इधर हम लिख देंगे A by O. sec के लिए हम क्या करेंगे, जो cos का फॉर्मूला था हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, दैट इज H by A. एंड अभी तुमको समझ गया होगा कि हाउ टू राइट द रेशियो फॉर कोसेक. यस, इट इज ट्रू कि हमको उसको लिखना है साइन का रेसिप्रोकल. सो रेसिप्रोकल ऑफ साइन विल बी H by O. तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए तैयार. सो साइन इज O by H, cos is A by H, tan is O by A,
cot is a by o, sec is h by, and cosec is h upon o, where o is the opposite side, h is hypotenuse, and a is the adjacent side. I hope you have understood. See, sin, cos and tan, इन तीनों का लिखना तो बहुत easy है with the help of the friend we have, that is SOHCAHTOA. And then for cot, sec and cosec, what we have to do? Tan को उल्टा कर दो, you will get cot. Cos को उल्टा कर दो, you will get sec. And sin को उल्टा कर दो, you will get cosec. So very easy to understand. These were the trigonometric ratios. Now let us move further, और हम अभी देखने वाले हैं trigonometric identities. तो हमारे पास टोटल वी हैव 5 आइडेंटिटीज, या तो इसको तुम स्क्वायर रिलेशंस भी बोल सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आल्सो यू कैन कॉल देम. सो लेट अस सी व्हाट आर द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी इज sin square theta plus cos square theta is equal to 1. This is the first one. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Second is 1 plus tan square theta is equal to 1 plus tan square theta is equal to, it is sec square theta. Now you will ask कि ये theta क्या है? Theta is nothing but theta is an angle. Theta is an angle. जैसे एंगल ए होता है, एंगल बी होता है, एंगल सी होता है, वैसे अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, ये भी एंगल के नोटेशंस ही होते हैं. सो फर्स्ट इज sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Second is 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. And third one is 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. So these are the three main identities, या तो इसको you can call them as square relations also. There are two more relations, उसको हम quotient relations भी बोलते हैं. We call them as quotient relations also. So they are sin theta divided by cos theta is equal to tan theta. So sin theta by cos theta is equal to tan theta. And the fifth one which we have is just इसका उल्टा हम करने वाले हैं, that is cos theta divided by sin theta is equal to cot theta. So हमारे identities जो है that is sin square theta plus cos square theta is equal to 1, then 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, then 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta, then we have sin theta by cos theta is equal to tan theta, and then we have cos theta by sin theta is equal to cot theta. Okay, so next what we are going to do is we are going to see trigonometric ratios of complementary angles. Now we are going to see complementary angle ratios. So what are complementary angles? What are complementary angles? Complementary means the addition of the two should be equal to 90. As we all know, supplementary means 180, so complementary is 90. So how to learn them, how to write them, let us see that first. So it is sin of 90 minus theta. Sin of 90 minus theta, ऐसा हम लिखेंगे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए. So cos of 90 minus theta, then tan of 90 minus theta, cot of 90 minus theta, sec of 90 minus theta, and cosec 90 minus theta. So let us now see how to write them. बहुत ही सिंपल है. देखो यहाँ पे मैं इनके पेयर्स बना रहा हूँ, एंड दैट इज द ओनली आंसर फॉर इट. तो साइन का पेयर किसके साथ है? कॉस. तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, tan of 90 minus theta is cot theta, cot of 90 minus theta is tan theta. देखो पेयर ही है. सेक का पेयर कौन है? कोसेक. सो सेक 90 माइनस थीटा इज cosec theta, and cosec of 90 minus theta will be उसका ही पेयर, that is sec theta. So ये बन गए हमारे complementary ratios. sin का पेयर किसके साथ है? sin का पेयर बनता है cos के साथ.
So sin 90 minus theta is cos theta. Cos का पेयर है sin, so cos 90 minus theta is sin theta. tan का पेयर बनता है यहाँ पे cot के साथ, and sec is with cosec. So in similar way मैं तुमको next जो set of formulas है that is for the reciprocal ratios. Reciprocal ratios that also इसी कुछ तरीके से I'm going to tell you. So try to understand. ये बहुत ही simple technique I am telling you. So let us see how to do this. Sin theta, इन सब का हमको क्या करना है? We have to take the reciprocal ratios. Sin, cos, tan, cot, sec and cosec theta. Now see कि इसका हम रेसिप्रोकल रेशो कैसे लिखेंगे और कैसे याद रखेंगे. सो एज यू कैन सी हमने यहाँ पे लिखा है साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक फ्रॉम टॉप टू बॉटम. नाउ अगर इसका हमको फॉर्मूलाज याद रखना है, व्हाट वी विल डू, रेसिप्रोकल है, सो आई एम राइटिंग हियर 1 अपॉन, रेसिप्रोकल इज नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाय, सो ये हो गया 1 अपॉन. अभी ये जो मेरा एक सीक्वेंस है साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, तो दिस सीक्वेंस अभी मैं लिखूंगा इसको बॉटम से. आई विल स्टार्ट राइटिंग इट फ्रॉम द बॉटम. सो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा and you can see last one will be cosec theta. So we can say that sin theta is equal to 1 by cosec, cos theta is equal to 1 by sec, tan theta is equal to 1 by cot theta theta is equal to 1 by tan theta, and sec theta is equal to 1 by cos theta and cosec. So how to learn, write, memorize जो भी है within 1 or 2 minutes. So let us see ki how to make this table. So I'll try to explain it in the simplest way possible. Okay, so please pay full attention. So मैं जैसा बोलता हूँ बस तुम वैसा फॉलो करो. एंड सी साइन 0, यू रिमेंबर कि हमको टेबल की शुरुआत हमेशा करनी है 0 से. सो द स्टार्टिंग ऑफ द टेबल आई एम डूइंग इट विथ 0. स्टार्ट करेंगे हम 0 से एंड वी आर गोइंग टू एंड इट विथ 1. सो मैंने शुरू कर दिया है 0 से एंड आई हैव एंडेड इट एट 1. नाउ हमको इस टेबल के सिर्फ 4 वैल्यूज लर्न करने. व्हाट आई एम टेलिंग यू, इस टेबल के हमको सिर्फ 4 वैल्यूज लर्न करने हैं एंड आफ्टर दैट ये पूरा का पूरा टेबल वी कैन प्रिपेयर, वी कैन राइट इट. हम ये पूरा टेबल बना सकते हैं बाय लर्निंग ओनली 4 वैल्यूज. तो आउट ऑफ दोज 4 वैल्यूज आई एम गोइंग टू टेल यू फर्स्ट इज 3 वैल्यूज. मैं तुमको इसमें के 3 वैल्यूज बोलने वाला हूँ एंड दोज 3 वैल्यूज आर 1/2, 1/√2 एंड √3/2. सो ये 3 वैल्यूज सिर्फ तुमको याद रखने हैं एंड देन दिस टेबल इज़ वेरी वेरी ईजी. बहुत ही आसान है ये टेबल. सो जल्दी से ये 3 वैल्यूज लर्न करो. दैट इज 1/2, 1/√2, √3/2. 1/2, 1/√2, √3/2. अगर तुम देखो सबके डिनोमिनेटर में 2 है, बस बीच में जो है √2 है. सो द 3 वैल्यूज आर 1/2, 1/√2, √3/2. और एक बार 1/2, 1/√2 एंड √3/2. ओके, सो मेरे 3 वैल्यूज थे. व्हाट आर द 3 वैल्यूज? मेरे 3 वैल्यूज थे 1/2, 1/√2 एंड √3/2. यस, इट इज √3/2. तो ये बन गए पूरे साइन के वैल्यूज. नाउ अभी हमको लिखने हैं कॉस के वैल्यूज. तो याद करो हमने साइन की शुरुआत कहाँ से की थी? हमने साइन की शुरुआत की थी 0 से और एंड कहाँ पे किया था? एंड हमने किया था 1 के ऊपर. तो कॉस के लिए हम पूरी तरह उल्टा करने वाले हैं. हम इधर शुरुआत करेंगे 1 से और एंड करेंगे 0 पे. या तो तुम इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, जो भी साइन के वैल्यूज थे कॉस में तुमको पूरे के पूरे रिवर्स में लिखनी है. यू हैव टू राइट द वैल्यूज इन द रिवर्स ऑर्डर. सो लेट अस राइट ऑल द वैल्यूज. सो 1, फिर ये आएगा √3/2,
√3/2, ये इधर ही आएगा 1/√2, 1/√2 विल कम हियर ओनली, 1/√2, 1/2 इधर आ जाएगा। सो ये रहा मेरा 1/2 और ये रहा इधर 0। सो cos थीटा के वैल्यूज मैंने कैसे लिखे? मैंने पूरा sin थीटा का वैल्यूज फ्रॉम द एंड आई हैव स्टार्टेड राइटिंग इट। ओके, सो सिर्फ इन 3 वैल्यूज से मेरा पूरा टेबल बनने वाला है, और एक वैल्यू है 4th वैल्यू। सो नाउ लेट अस सी tan को कैसे लिखना है। सो मैं तुमको अभी वो 4th वैल्यू बताने जा रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू द 4th वैल्यू। tan को लिखने के 2 तरीके हैं, मैं तुमको दोनों बता देता हूँ। तो फर्स्ट सिंपल वाला, सिर्फ लास्ट अभी जो हमको 4 वैल्यूज लर्न करने थे, तो पहले 3 तो थे 1/2, 1/√2, √3/2, जो 4th रहेगा दैट इज 1/√3। ओके, दैट विल बी 1/√3। तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ मेरा वैल्यू 1/√3। ओके, इन द tan थीटा के रो में आई एम राइटिंग इज 1/√3। तो बाद में जो नेक्स्ट वैल्यू आने वाला है ना, दैट इज गोइंग टू बी 1/√3 से ही बनाइए, एंड इसके बाद जो वैल्यू आएगा दैट इज गोइंग टू बी √3, जो फिर से 1/√3 से ही बनाया मैंने। सो ये हो गया 1/√3, एंड tan इधर आएगा 0, इधर आएगा इन्फिनिटी। सो ये एक तरीका है इसको समझने का tan को। या तो फिर अगर तुमको और दूसरा मेथड चाहिए तो दैट ऑल्सो आई विल टेल यू। सो हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में देखा था, व्हाट वी हैव सीन, sin थीटा बाय cos थीटा, ये क्या होता है, दिस इज इक्वल टू tan थीटा, मतलब sin बाय cos होता है tan। सो हमको वही करना है, फिर sin का वैल्यू एंड cos का वैल्यू, इनका हमको करना है डिवीजन। तो लेट अस सी 0 के कॉलम में 0/1 कितना होता है, 0/1, 0/1 इज 0, 0/1 इज 0, तो इधर आएगा 0। देन इनका डिवीजन करो, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, इसका डिवीजन क्या आता है, दोनों के डिवीजन में 2 है तो 2 विल बी कैंसल्ड। व्हाट विल बी योर आंसर? मेरा आंसर होना चाहिए 1/√3। ओके, देन इन दोनों का डिवीजन करो, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, सो इट विल बी 1। एंड देन नेक्स्ट क्या होगा, ये हम यूज कर रहे हैं sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो √3/2 डिवाइड बाय 1/2, दोनों के डिवीजन में 2 है तो वो 2 कट हो जाएगा, एंड देन वी आर लेफ्ट विथ √3/1, दैट इज नथिंग बट √3। एंड फिर हमको करना है इसका डिवीजन। व्हाट इज 1 डिवाइडेड बाय 0? 1 डिवाइडेड बाय 0, तो किसी भी नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है इन्फिनिटी। तो इसको इन्फिनिटी यू कैन राइट, और यू कैन राइट इट एज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हो उसको, या तो यू विल राइट इन्फिनिटी। ओके, यू विल राइट इन्फिनिटी। सो जैसे हमने आइडेंटिटी यूज किया था कि साइन डिवाइडेड बाय कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, वैसे ही हमारे पास एक और आइडेंटिटी था इसी का उल्टा, क्या था वो, cos थीटा बाय साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का वैल्यू तुम वैसे भी लिख सकते हो cos डिवाइडेड बाय साइन करके, लेकिन इतना डिवीजन हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये पूरा tan का वैल्यू हम लिख देंगे रिवर्स में, tan का वैल्यू हम लिख देंगे रिवर्स में जैसा हमने cos के लिए किया था। सो क्या रहेगा वैल्यू, पहले आ जाएगा इन्फिनिटी, फिर आ जाएगा √3, फिर आ जाएगा 1, देन 1/√3, एंड देन वी विल हैव 0, वी विल हैव 0। ओके, तो ये हो गया साइन, कॉस, tan एंड कॉट का। नाउ सेक, सेक का कैसे लिखें, इफ रिमेंबर रेसिप्रोकल रेशियोज, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय, क्या होता है 1 बाय, इट इज 1 बाय कॉस थीटा। रेसिप्रोकल रेशियोज, सेक थीटा इज नथिंग बट 1 बाय कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, सेक लिखने के लिए हम हेल्प लेने वाले हैं कॉस का। तो कॉस का जो भी वैल्यू होगा हम उसका लिख देंगे यहाँ पे उल्टा, दैट इज रेसिप्रोकल। 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। √3/2 को उल्टा लिख दो, दैट इज 2/√3, देन 1/√2 को उल्टा लिख दो, दैट इज √2/1, 1/2 को उल्टा लिख दो, दैट इज 2,
जीरो का रेसिप्रोकल करना है, मतलब व्हाट यू हैव टू डू, रेसिप्रोकल मतलब 1/0। तो 1/0 कितना आता है, अभी जस्ट मैंने बोला था डिवीजन में अगर जीरो आया तो इट विल बी इन्फिनिटी। यस, तो ये सेक थीटा का टेबल भी बन गया है हमारा। एंड कोसेक थीटा, जैसे सेक थीटा इज 1/कॉस थीटा, वैसे ही कोसेक थीटा इज 1/साइन थीटा। तो कोसेक का भी वैल्यूज तुम साइन का रेसिप्रोकल लेके लिख सकते हो, या तो इससे भी आसान तरीका अगर तुमको चाहिए, देन अगेन व्हाट यू हैव टू डू, पूरा का पूरा सेक थीटा रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे लिख दो। यू राइट द वैल्यूज ऑफ सेक थीटा इन रिवर्स ऑर्डर। पहले आएगा इन्फिनिटी, देन आएगा 2, फिर आ गया √2, देन आ गया 2/√3 and at the last you have 1. So this is your complete trigonometric table, that is nothing but the values for different angles, that is 0, 30, 45, 60 and 90. You can see 45 में ये दोनों वैल्यू सेम है, these two values are same, these two values are same. So 45 डिग्री को याद रखना is very very easy. Then देखो इधर सेक साइन का हमने यहाँ पे ऐसा क्रॉस मैनर में तुम इसको याद रख सकते हो, यू कैन रिमेम्बर इट लाइक दिस। सेम फॉर tan एंड cot ऑल्सो, दिस मेथड यू कैन यूज। सेम फॉर sec and cosec, दिस मेथड यू कैन यूज। सो आई होप तुमको सब कुछ अच्छे से समझ गया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।